Assalamu alaikum. In this class, we are going to discuss about adders and subtractors in digital circuits. These are the outlines which we will discuss one by one. What are the adders? Adders are basically, as the name indicates, perform the various arithmetic operations over the binary data. And in digital systems, an adder is a digital circuit that performs addition of numbers. We have basically two types of adders. One is known as a half adder and the other is known as full adder. What is half adder? As the name indicates, this half adder is a combination logic circuit which is used to design to add two single bit numbers. So we can say that this is arithmetic logic circuit which is used to add two single bit numbers. In case of half adder, you have two inputs. In this case, we have inputs A and B and two outputs that are sum and carry. Now we will design the half adder in the following steps. For designing of half adder, initially we have to identify the number of inputs and the output variables. The input variables are A and B, which are either 0 or 1, and the output variables are S and C, where S is equal to sum and C indicates the carry. In step number 2, we have to draw the truth table for designing of half adder. As we know that we have two inputs A and B, so total number of possible combinations are 4, 2 to the power n, that is 4. अगर आप पहली कॉम्बिनेशन में देखें, आपके पास A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू भी 0 है, तो आपके पास जो सम आएगा दैट इज 0 प्लस 0 0 और कैरी भी आपके पास 0 आएगा. These are the outputs of this combination. For second combination 0 plus 1, तो आपके पास जो सम आएगा दैट इज 1 एंड कैरी 0. थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए 1 प्लस 0, तो आपके पास सम आएगा 1 और कैरी आएगा 0. फाइनली इन फोर्थ कॉम्बिनेशन वी कैन सी दैट A has a value of 1 and B has a value of 1, so 1 plus 1 is equal to 0 and आपके पास एक कैरी जनरेट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर कैरी भी एक्टिवेट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1. In step number 3, after getting the truth table, we need to require K-map so that we can get the minimized Boolean expressions. यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने कर्नॉफ मैप जो है सम और कैरी के लिए अलग-अलग डिजाइन किया है. फॉर सम आपके पास जो वेरिएबल्स हैं दो हैं A एंड B. सो यहाँ पर जो है A की वैल्यू 0 है विच इज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, यहाँ पे A की वैल्यू 1 है जो कि नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है. यहाँ पे B की वैल्यू 0 है दैट इज इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और यहाँ पर B की वैल्यू जो है 1 है जो कि आपके पास सिंपल रहेगी. सो सम के लिए अगर आप देखें तो आपके पास जो कर्नॉफ मैप में जो मैपिंग होगी वो एक कॉम्बिनेशन आपके पास 0 1, तो A जो है जब 0 होगा और B 1 होगा तो आपने यहाँ पे मैप कर देना है. सेकेंड वन इज जब A आपके पास 1 है और B आपके पास 0 है तब आप इसको मैप कर देंगे. अब आपने सम के लिए जो आपने सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन जो आपके पास आएगा दैट इज S is equal to AB complement plus A complement B, which is we know that this is an exclusive OR gate which is equal to A exclusive B. Similarly for carry आपने जो है आउटपुट को मैप कर देना है इसके मैप में, तो आपके पास जो कैरी जो जनरेट हो रही है वो कॉम्बिनेशन आपके पास जब आपके पास A1 हो और B1 हो. सो A1 हो और B आपके पास 1 हो तो आपने यहाँ पे मैप कर देना है. सो वी कैन गेट द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन फॉर कैरी इज दैट इज C is equal to A dot B.
Finally, we need to draw the logic diagram as we have the minimized Boolean expressions for sum and carry that are A exclusive B and A dot B, and we can see that we need only two gates which are exclusive OR gate for sum and AND gate for carry. आप देखिए हमने एक एक्सक्लूसिव OR गेट हमें रिक्वायर्ड था और एक AND गेट रिक्वायर्ड था। इसकी इनपुट्स में भी आपके पास A और B आ रहा है और इसकी इनपुट्स पे भी आपके पास A एंड B आ रहा है। इस गेट की जो आउटपुट होगी दैट इज S इज इक्वल टू A एक्सक्लूसिव B जो सम के लिए यूज होगी और इसकी जो आउटपुट है वो कैरी के लिए यूज होगी दैट इज A डॉट B। सो दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ द हाफ एडर। Now we will discuss the full adder and its designing. Full adder is also a single bit adder. But why we choose a full adder? Because we have some limitations for half adder, and those limitations are that half adder have no scope for adding the carry bit resulting from the addition of previous bits. And to overcome this drawback, full adder comes into play. Here we can see that the full adder is used for the purpose of adding two single bit numbers with a carry. Thus, the full adder has the ability to perform the addition of 3 bits. So, full adder contains 3 inputs A, B and C in, carry in, and the 2 outputs sum and carry, that which is known as carry out. This is basically the block diagram of the full adder. For designing of the full adder, we have to follow these steps. In step number 1, we have to identify the number of inputs and the output variables. The input variables are A, B, C in, which are either 0 or 1. And the output variables are S and C out, where S is sum and C out is the carry. Now we require the truth table for designing of full adder. As we have 3 inputs which are A, B and C in, and the 2 outputs C out and S. So we can see that we have 3 inputs, so the total number of combinations of this truth table are 8. अगर हम इन कॉम्बिनेशंस को देखें तो पहली कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो A, B और C इन की जो वैल्यू है, तीनों की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हमारे पास जो सम होगा वो भी 0 होगा और कैरी आउट जो होगा वो भी हमारे पास 0 होगा, क्योंकि हमारे पास कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। सीक्वेंस नंबर 2 में अगर हम देखें A is equal to 0, B is equal to 0 and C in is equal to 1. So 0 plus 0, 0 and 0 plus 1, तो आपके पास जो सम आएगा वो 1 आएगा और कैरी आपके पास 0 रहेगा। For sequence number 3, A is equal to 0, B is equal to 1, 0 plus 1 that is 1, आपके पास सम 1 आ गया, and 1 plus 0 सम 1 ही रहेगा और आपके पास कैरी जो आउट जो है वो 0 आएगा। In case number 4, we have A is equal to 0 and B is equal to 1, so 0 plus 1 that is equal to 1 and 1 plus 1 that is equal to 0, तो हमारे पास जो सम आएगा वो 0 आएगा और हमारे पास एक कैरी जनरेट हो जाएगा जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। इन सीक्वेंस नंबर 5, 1 plus 0 is equal to 1 and 1 plus 0 is equal to 1, तो सम आपके पास यहाँ पे 1 रहेगा और कैरी आपके पास 0 आएगा। इन सीक्वेंस नंबर 6, 1 plus 0 आपके पास सम 1 आया, फिर 1 plus 1 आपके पास जो सम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और आपके पास एक कैरी जनरेट हो जाएगा। इन सीक्वेंस नंबर 7, 1 plus 1 आपके पास सम 0 आया, 0 plus 0 तो आपके पास सम 0 ही रहेगा और एक आपके पास क्या हो जाएगा, कैरी जनरेट हो जाएगा। इन लास्ट सीक्वेंस 1 plus 1 0, 0 plus 1 1, तो आपके पास एक आपके पास
जो सम आ जाएगा, सम भी आएगा आपके पास, और आपके पास एक कैरी यहां पर जनरेट हो जाएगा। So this is the truth table of the full adder. Now in step number 3, we are required to draw the Karnaugh map using this truth table and determine the simplified Boolean expression. So the Karnaugh map for sum, अगर यहाँ पर देखें सम के लिए हमने Karnaugh map को जो है वो ड्रॉ किया है। यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास जो इनपुट्स हैं दैट आर ए बी एंड सी इन, तो आपने ए वेरिएबल यहां पे शो किया है और बी सी इन वेरिएबल्स आपने यहां पे शो किए हैं। सो ए जो है आपके पास कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है। यहां पर जो है बी और सी इन की वैल्यू 0 0 है, यहां पर 0 1 है, यहां पे 1 1 है, यहां पर जो है आपके पास 1 0 है। सो सम के लिए अगर आप देखें आपके पास जो कॉम्बिनेशन है, एक है 0 0 1, एक कॉम्बिनेशन 0 1 0, एक कॉम्बिनेशन आपके पास 1 0 0 और एक कॉम्बिनेशन है आपके पास 1 1 1। तो आपने इन कॉम्बिनेशंस के ऊपर 1 को मैप कर देना है। जब आप इनको मैप कर देंगे तो आप जो है बूलियन एक्सप्रेशन जो है यहां से आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं फॉर सम के लिए। S इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C इन प्लस A कॉम्प्लीमेंट B C इन कॉम्प्लीमेंट प्लस A B C इन प्लस A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट इन C इन कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आप देखें तो आप यहां पर C इन को जो है कॉमन ले सकते हैं और आपके पास जो टर्म्स रह जाएंगी दैट इज A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस AB। फिर इन दो टर्म्स में आप C इन कॉम्प्लीमेंट को जो है वो कॉमन ले लें, तो आपके पास जो टर्म्स रह जाएंगी दैट आर A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट है और ये आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट है। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज C इन इंटू A एक्सक्लूसिव नॉर B प्लस C इन कॉम्प्लीमेंट इंटू A एक्सक्लूसिव और B। अगर आप इसका A एक्सक्लूसिव और B का इन्वर्ट लेते हैं तो आपके पास A एक्सक्लूसिव नॉर आएगा। सो आप इस इक्वेशन को इस तरह राइट कर सकते हैं C इन इंटू A एक्सक्लूसिव और B प्लस C इन कॉम्प्लीमेंट इंटू A एक्सक्लूसिव और B। सो फाइनली we can write this equation S is equal to C in exclusive A exclusive B. So this is the Boolean expression for sum. Now we require the Boolean expression for carry out. तो सबसे पहले हमने जो है कर्नॉफ मैप जो है वहां पे हमने उसकी मैपिंग कर देनी है कि आपके पास कैरी आउट कब जनरेट हुआ है, उन पोजीशंस पे आपने जो है उनको मैप कर देना है। उसके बाद आपने ग्रुपिंग्स कर ली, एक ये ग्रुप आपके पास बन गया है, एक ये ग्रुप बन गया है और एक ये ग्रुप बन गया है। तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन आएगा दैट इज सी आउट इज इक्वल टू, अगर आप इस ग्रुप को देखें यहां पर आपके पास ए और बी, ए बी आएगा जो कि सी इन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है। प्लस अगर आप अब इस ग्रुप को देखें तो यहां पर आपके पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट ये चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू चेंज हो रही है जबकि बी सी इन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। देन प्लस इस ग्रुप में अगर आप देखें ए इंटू सी इन, जबकि बी की वैल्यू जो है वो इस ग्रुप में चेंज हो रही है। तो आपके पास जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा फॉर कैरी के लिए, कैरी आउट के लिए, दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन। Now we can easily draw the logic diagram for full adder. अगर हम इन इक्वेशंस को देखें तो हमें एक एक्सक्लूसिव OR गेट, 3 इनपुट एक्सक्लूसिव OR गेट, 3 जो है हमें AND गेट रिक्वायर्ड है और एक जो है हमें 3 इनपुट OR गेट रिक्वायर्ड है फॉर सी आउट के लिए। तो आपके पास 3 इनपुट एक्सक्लूसिव OR गेट है, यहां पर आपके पास ए बी और सी इन इसकी इनपुट है, तो आपके पास आउटपुट के ऊपर सम आएगा दैट इज इक्वल टू सी इन एक्सक्लूसिव ए एक्सक्लूसिव बी। फिर अगर आप कैरी के लिए देखें तो ए बी आपका ए के एंड गेट में से पास हो रहा है
ACN आपका एक एंड गेट में से पास हो रहा है जो कि ये एंड गेट है, और BCN आपका इस एंड गेट में से पास हो रहा है। ये आउटपुट जो है फिर आपके पास और गेट में से पास हो रही है, और आपके पास जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा सी आउट दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन। So this is the designing of the full adder. Now we are going to design the full adder using two half adders. A full adder can be implemented using two half adder and an OR gate. As we know that the Boolean expressions for the half adder are S is equal to AB complement plus A complement B, which is equal to A exclusive P, exclusive OR P. एंड सी कैरी जो था आपके पास हाफ एडर में दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी, एंड द बुलियन एक्सप्रेशंस ऑफ द फुल एडर आर फॉर सम इज इक्वल टू सी इन एक्सक्लूसिव ए एक्सक्लूसिव बी, एंड फॉर कैरी आउट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन. We can write the sum equation for full adder as below, which is S is equal to C in exclusive और S. यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास सम की जो इक्वेशन है फॉर फुल एडर के लिए वो है आपके पास C in एक्सक्लूसिव और A एक्सक्लूसिव और B. तो A एक्सक्लूसिव और B जो है वो आपके पास हाफ एडर का सम भी है, तो आप इसको यहाँ पे हाफ एडर के सम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये आपके पास जो सम इक्वेशन है फॉर फुल एडर के लिए वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. So now for C out of full adder can be written as C out की जो आपके पास इक्वेशन है that is AB plus AC in plus BC in, which we can write as AB plus AC in plus BC in into A plus A complement. A plus A complement is equal to 1, जो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिटल सर्किट्स में अगर आप इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो, which is equal to AB plus AC in plus BC in A plus BC in A complement, which is equal to, अब अगर आप AB कॉमन ले लें इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर आप AB कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा AB इंटू 1 प्लस C in प्लस, अब आप AC in को जो है वो AC in प्लस BC in A complement, which is equal to AB 1 प्लस C in आपके पास क्या होता है 1. सो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन ए कॉम्प्लीमेंट. नाउ आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी इन इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी इन ए कॉम्प्लीमेंट. इसको ओपन कर दें तो आपके पास आ जाएगी ए बी प्लस ए सी इन बी प्लस ए सी इन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी इन ए कॉम्प्लीमेंट. अब अगर आप ए बी कॉमन ले लें इन दो टर्म्स में तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी इंटू 1 प्लस सी इन प्लस सी इन, यहां पर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, विच इज इक्वल टू आपके पास यह क्या किसके इक्वल हो जाएगा ए बी के, ए बी प्लस सी इन इंटू ए एक्सक्लूसिव और बी. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी प्लस सी इन और ए एक्सक्लूसिव और बी जो है आपके पास हाफ एडर का सम की इक्वेशन है, आप इसको यहाँ पे ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं. अब अगर आप इसकी सर्किट डायग्राम देखें या ब्लॉक डायग्राम देखें हाफ एडर की यूजिंग टू फुल एडर की यूजिंग टू हाफ एडर्स, तो सम के केस में अगर आप देखें सम के केस में तो आपके पास सी इन एक्सक्लूसिव और एस जो है ये सम है फॉर हाफ एडर का, वो इसकी दूसरे हाफ एडर की इनपुट बन जाएगी और एक्सक्लूसिव और गेट में से ये दोनों जो है पास होंगी उसकी इनपुट्स हैं, तो आपके पास जो सम आएगा फॉर फुल एडर दैट इज इक्वल टू सी इन एक्सक्लूसिव और एस. कैरी आउट के लिए अगर आप देखें तो आपके पास ये कैरी जो है इस हाफ एडर का जो कैरी है वो इस और गेट की इनपुट है जो कि आपके पास ए बी है, दैट इज ए बी प्लस आपके पास क्या है सी इन और एस जो है वो एंड गेट इस हाफ एडर के एंड गेट में से पास होकर इसकी इनपुट बनेगी और आपके पास जो सी आउट आएगा दैट इज ए बी प्लस सी इन एस. तो ये जो था फुल एडर की डिजाइनिंग थी यूजिंग हाफ एडर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सब्ट्रैक्टर्स.
in digital system, a subtractor is a digital circuit that performs the subtractions of the numbers. There are basically two types of subtractors, a half subtractor and the full subtractor. Now we will discuss about the half subtractor and its designing. The logic circuit which performs the subtraction of two 1-bit numbers is called as half adder. Half adder basically has two 1-bit inputs and the two outputs which are difference and borrow. And the block diagram for the half adder is shown below. यहाँ पर देखें आपके पास दो इनपुट्स हैं A and B और आपके पास जो आउटपुट्स हैं वो है आपके पास D difference and B borrow. For designing of half subtractor, we have to follow these steps. Number one, we have to identify the input and the output variables, and the input variables are A and B, which are either 0 or 1, and the output variables are D and B, where D is equal to difference and B is equal to borrow. This is the table for the half subtractor. हमारे पास दो इनपुट्स हैं A and B, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगी हमारे पास 4 और आउटपुट है हमारे पास डिफरेंस एंड बारो D एंड B. सो पहली कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें 0 माइनस 0 तो आपके पास डिफरेंस 0 आएगा और बारो भी आपने कोई नहीं लिया तो 0 0 रहेगा. दूसरी कॉम्बिनेशन में देखें 0 माइनस 1. अब आपने 0 में से 1 को माइनस करना है तो आपको यहां पे बोरो लेना होगा. जब आप बोरो लेंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 2. अगर आप यहां पर देखें आपके पास यहां पे एक बिट ऐड हो जाती है 0 1 या यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2. 2 माइनस 1 आपके पास क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा आपके पास 1 और आपने बोरो भी किया था 1. थर्ड कॉम्बिनेशन में देखें 1 माइनस 0 तो आपके पास जो है डिफरेंस जो आएगा 1 और आपने इसमें कोई बोरो नहीं लिया. फोर्थ कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें 1 माइनस 1 तो आपके पास डिफरेंस 0 आएगा और आपने इसमें भी कोई बोरो नहीं लिया. सो दिस इज द ट्रुथ टेबल of the half subtractor. Now we need to draw the K-map using truth table and determine the simplified Boolean expression. अगर आप कर्नॉफ मैप जो है वो ड्रॉ करते हैं फॉर डिफरेंस के लिए तो आपके पास जो डिफरेंस है वो कॉम्बिनेशन नंबर 2 एंड कॉम्बिनेशन नंबर 3 में है तो आप यहाँ पे उसको मैप कर दें. तो जो वैल्यूज हैं ए की वैल्यू जब 0 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी आपने यहाँ पे मैप कर दिया. ए की वैल्यू जब 1 है और बी की वैल्यू 0 है आपने यहाँ पे मैप कर दिया. तो आपके पास सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन आएगा दैट इज डी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी. एंड फॉर बोरो आपके पास बोरो ए की कॉम्बिनेशन में जनरेट हो रहा था दैट इज 0 1. सो 0 1 आपके पास यहाँ पर जो सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन आएगा दैट इज बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी. नाउ we are going to draw the logic diagram for the designing of half subtractor. And for the implementation of half subtractor we required one exclusive OR gate, one AND gate and one inverter as shown in below. अगर आप डिफरेंस की जो इक्वेशन देखें बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो आपके पास है ए एक्सक्लूसिव और बी. आप इस एक्सक्लूसिव और बी आपके पास ये आ गया आपके पास इसकी जो इनपुट है ए एंड बी तो आपके पास जो आउटपुट पे डिफरेंस आएगा दैट इज ए एक्सक्लूसिव और बी. बोरो के लिए आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी है. सो ए की जो आप इन्वर्टर में से पास करेंगे वो इसकी इनपुट बन जाएगी और आपके पास बी आएगा तो आपके पास जो आउटपुट एक्सप्रेशन होगा दैट इज बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी. सो दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ द हाफ सबट्रैक्टर. Now we will discuss and design the full subtractor. As we know that the half subtractor have some limitations which have no scope of taking into account borrow in from the previous circuit. So overcome this drawback we use full subtractor. Full subtractor basically used for the purpose of subtracting of two single bit numbers with a borrow in. Hence the full subtractor has the ability to perform the subtraction of 3 bits and the full subtractor contains 3 inputs and 2 outputs which are difference and borrow as shown in this block diagram. अगर आप यहाँ पर देखें
तो आपके पास फुल सबट्रैक्टर के 3 इनपुट्स हैं, दैट इज ए, बी एंड बी इन विच इज बारो इन, एंड 2 आउटपुट्स, डी डिफरेंस एंड बी आउट बारो आउट. To design the full subtractor, we have to follow these steps. Initially, we have to identify the number of inputs and the output variables. Input variables we have A, B, and B in, borrow in, which are either 0 or in 1. Output variables are D and B out, which are where D is equal to difference and B out is known as borrow out. This is the truth table of full subtractor. As we have 3 input variables A, B and B in, borrow in, so total number of combinations are 8. अगर आप पहले कॉम्बिनेशन में देखें तो आपके पास A 0 है, B 0 है और borrow in भी 0 है. So 0 minus 0 0 and 0 minus 0 0. So आपके पास जो आउटपुट डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा और borrow out भी 0 आएगा. यहां पर सेकंड कॉम्बिनेशन में देखें 0 minus 0 0 0 minus 1. अब आपने 0 में से 1 को इस कॉम्बिनेशन में जो है सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको एक बारो लेना होगा. जब आप एक बारो लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 1 0 विच इज इक्वल टू 2. सो 2 minus 1 इज इक्वल टू 1. तो डिफरेंस आपके पास 1 आएगा और आपने यहाँ पे एक बारो भी लिया है. इन सीक्वेंस नंबर 3 0 minus 1 आपको एक बारो लेना होगा, बारो आ गया. 2 minus 1 1 आपके पास डिफरेंस 1 आ जाएगा. सीक्वेंस नंबर 4 0 minus 1 you need a borrow. 2 minus 1 1 borrow तो आ गया. फिर 1 minus 1 0 आपके पास डिफरेंस 0 आएगा और borrow 1 आएगा. इन दिस सीक्वेंस 1 minus 0 0 डिफरेंस आएगा और आपको borrow नहीं लेना होगा. इन दिस सीक्वेंस 1 minus 0 0 1 minus 0 1 and 1 minus 1 0. सो आपके पास डिफरेंस और borrow दोनों 0 होंगे. इन दिस सीक्वेंस 1 minus 1 0 डिफरेंस 0 आ गया और आपके पास borrow भी 0 रहेगा. इन दिस सीक्वेंस 1 minus 1 0, फिर 0 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने एक borrow लेंगे, आपके पास एक borrow आ जाएगा. तो 2 minus 1 1, तो डिफरेंस जो है आपके पास 1 आएगा. सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर फुल सबट्रैक्टर. नाउ वी नीड अ के मैप after getting this truth table to determine the simplified Boolean expression. The Boolean expression for the difference is as under. सबसे पहले आपने डिफरेंस के लिए कर्नॉफ मैप जो है वो डिजाइन कर लिया. डिफरेंस आपके पास 1 2 3 4 कॉम्बिनेशंस में आपके पास डिफरेंस आ रहा है. आपने वहां पे उसको मैप कर देना है और ये इक्वेशंस जो है आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, लिख लेनी है और इसको सिंप्लीफाइड करते जाएंगे. आपके पास जो डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू सी इन एक्सक्लूसिव ए एक्सक्लूसिव बी. So this is the simplified Boolean expression for difference D of full subtractor. Now we need to draw the K map for borrow. अगर आप देखें तो आपके पास borrow जो है 4 कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो है आपके पास जनरेट हो रहा है. इन कॉम्बिनेशंस के ऊपर आपने borrow को मैप कर देना है और यहां पर आपने इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है. आपके पास 3 ग्रुप्स बनेंगे, एक ये ग्रुप बनेगा, एक ये ग्रुप बनेगा और एक आपके पास ये ग्रुप बनेगा. इन ग्रुप्स से आप जो है सिंप्लीफाइड जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा फॉर बोरो आउट के लिए वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू, अगर आप इस ग्रुप में देखें तो यहां पर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस, इस ग्रुप में देखें बी बी इन, इस ग्रुप में देखें आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इन. तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन होगा फॉर बोरो ऑफ फुल सबट्रैक्टर, विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इन प्लस बी बी इन. Now we need to draw the logic diagram, and we can see that by these expression we require a 3 input exclusive OR gate, 3 AND gates, 2 input AND gates, single inverter and a 3 input OR gate. अगर आप देखें तो आपके पास ये एक एक्सक्लूसिव OR गेट है 3 इनपुट. यहां पर आपके पास A, B और C इन इसकी इनपुट्स हैं. आपके पास आउटपुट पे डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू
A एक्सक्लूसिव B एक्सक्लूसिव C इन। 12 आउट के लिए अगर आप देखें, आपके पास 3 एंड गेट हैं। एक एंड गेट में से A कॉम्प्लीमेंट B आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में आया और ये B इनपुट आई, ये आ जाएगा। दूसरी में आपके पास आएगा A कॉम्प्लीमेंट B इन और एक में आएगा आपके पास B इन। ये तीनों आउटपुट जो है इस और गेट की, इस 3 इनपुट और गेट की इनपुट्स बन जाएंगी और आपके पास जो आउटपुट पे आएगा दैट इज B आउट विच इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A कॉम्प्लीमेंट B इन प्लस B इन। So this is the designing of the full subtractor. Okay, we have discussed in this class regarding adders and subtractors, and if you have any question, you can ask in the Google Classroom. Thank you. Allah Hafiz.